নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রির বিরোধিতা করতে গিয়ে নেশা আক্রান্ত একাধিক ব্যক্তি। ঘটনা শনিবার গভীর রাতে পশ্চিম লক্ষ্মীবিল এলাকায়। পশ্চিম লক্ষ্মীবিল এলাকায় বেশ কিছুদিন যাবৎ এলাকার কিছু ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করে যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এলাকার বিশ্বজিৎ দাস, পিতা নেপাল দাস সহ কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হয়ে এই সমস্ত নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে নেশা সামগ্রী যেন বিক্রি না করতে পারে তারা তার বিরোধিতা করতে চায়, যার ফলে এলাকার নেশা কারবারিরা ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্বজিৎ দাসের বাড়িতে শনিবার রাতে চড়াও হয় এবং বিশ্বজিৎ দাসের পিতা নেপাল দাস সহ একাধিক সদস্যদের উপর আক্রমণ করেন এবং বাড়িঘর ভাঙচুর চালায়। ঘটনাস্থলে রাতে ছুটে যায় এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে, পাশাপাশি ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। রবিবার দুপুর 1টায় সংবাদ মাধ্যমে এ নিয়ে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন বিশ্বজিৎ দাস সহ উনার পরিবারের সদস্যরা। এ সমস্ত নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি তোলেন। অন্যদিকে রাতে উক্ত ঘটনাকে জড়িয়ে সাম্প্রতিক উস্কানিমূলক একটি ভিডিও ভাইরাল হয় ইতিমধ্যে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহীজলা জেলা শাসক বিজয় রেড্ডি, বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস দ্রুত ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন। উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত মূল মাস্টারমাইন্ড নিখিল ঘোষ ও রঞ্জন ঘোষ, যারা বিশ্বজিৎ দাসের বাড়িতে আক্রমণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পাশাপাশি এলাকার যে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সুমুঠো মামলা গ্রহণ করেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় ত্রিপুরা। মানে আমার দোষ একটা জিনিস একটাই ভুল আমার, যারা নেশা কারবারি আছে মিঠুন, রাজন, ওরার বিরুদ্ধে আমি আমার গ্রামের লোকজন নিয়ে সেটা একটা অ্যাকশন বা ওদের বিরোধিতা করতাম চাইছিলাম। এবার ওইটা করতে গিয়ে সেটা আজকে কৌশিক আর ফেরদৌস মিল্লা সে ঘটনাটা ঘটাইছে। হয়তোবা তার সাথে ওর কোনো একটা লিঙ্ক আছে, এর লিগে তো তারা ওরা পক্ষ হয়ে সেরে গেছে, গিয়ে সেটা আজকে এই ঘটনাটা ঘটাইছে। আজকে আমার বাড়ির 7-8জন লোক আজকে আহত হয়েছে ওদের এই আক্রমণে। সে সব যদি আমাদের বিধায়কের যদি হস্তক্ষেপে পুলিশ প্রশাসন এই জায়গা নাই তো তাড়াতাড়ি আজকে মনে হয় আমার ফ্যামিলির 7-8জন লোক একদম ডেড হয়ে গেলাম বলে। আমার যে ছোটো বাচ্চারা 5 বছরের, এই ছোটো বাচ্চাটার মধ্যে ওরা ছাড়ছে না। তো জিনিসটা এখন মনে হয় না, কারণ ওটা তারা যে নেশা কারবারি জিনিস আছে ওই নেশা কারবারি জিনিসের উপরেই তারা এই জিনিসটা করছে। এমএলএর তরফ থেকে জানাইছে, উনি কালকে রাত্রে অনেকক্ষণ যাবত আমাদের বাড়িতে আসলো, এইচডিবিউ স্যারও আসলো। তো ওনার তরফ থেকে তো অতটুকুই দাদু কইতেছে যে আইনি ব্যবস্থা যেমনি আইনের পক্ষ এখন যাব অভিযোগ জানানোর জন্য। অমলেশ ঘোষ মেইন কালপিট। আবার ওর নেতৃত্বে ফেরদৌস মিয়া, রাকেশ মিয়া, তারা দুজন ভাই। তারপরে জসিম, তারপরে আছে ফিরোজ মিয়া, ছুটন মিয়া, আরও 8-10 জন নাম আছে, প্রদীপ বণিক, আরও 8-10 জন আছে। আমরা তো এমনিতে বিজেপি করি, সবসময় বিজেপি করতেছে, বিজেপি। कल हमारा थाना में इंफॉर्मेशन आया था 10:30 बजे के आसपास कि वेस्ट लक्ष्मी बिल एरिया, जो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पे दो पार्टी के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो जैसे खबर आया तो वो जो हमारा ऑफिसर था, नाइट मोबाइल ऑफिसर, तुरंत वहाँ पे पहुंचा। 10 मिनट के अंदर पहुंच के देखा है कि वहाँ पे कुछ ग्रुप के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो फिर जैसे पुलिस को देखा है कि कुछ लोग निकल गए वहाँ से, 2-3 बाइक था, तो जिससे हम लोग बात कर रहा था हमारा ऑफिसर। जैसे बात कर रहा था वो लोग काफी अग्रेसिव दिख रहे थे कि हम लोग नहीं, हमको ऐसा बोला करके लगा। अचानक उसने देखा है कि दो तरफ से, एक तरफ से 20-25 लोग, दूसरी तरफ से 20-25 लोग आ रहे हैं अपने आपस में लड़ने के। तो उसके हाथ में लाठी वगैरह भी था, तो इसने उसको डिस्पर्स करने के लिए कोशिश किया, तो नहीं हुआ, तो फिर इसने मिनिमम एक्शन लेके सबको डिस्पर्स कर दिया। लेकिन मीनवेल हमको देखा है कि जब ये चल रहा था इसमें 3 लोग साधारण नॉर्मल इंजरी हुआ था, एक आदमी को सर के ऊपर इंजरी हुआ था, 2 स्टिचेस लगा। फिर हम लोग उसको फॉलो अप किया। आज सुबह उसने हपानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर में आया, जिससे मैंने खुद बात किया, उसको 2 स्टिचेस लगा है। तो इसका बेस जो है घटना का जो मेन ये है कि एक ग्रुप ने एलिगेशन दे रहा था दूसरा ग्रुप को, जो मेन मिथुन और रंजन घोष करके, ये लोगों ने एरिया में
नार्कोटिक्स आइटम या अदर इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे। इसी को लेके झगड़ा हुआ है। तो अभी जो झगड़ा हुआ है तो मैंने ओसी और एसडीपीओ को बोला है कि एक सुमोटो केस लेने के लिए हम लोग अभी सुमोटो केस लेके फिर एक्शन। सर किन लोगों के बीच झगड़ा हुआ? ये मिथुन घोष और रंजन घोष दो लोग जो है, इन लोगों ने एक विश्वजीत करके है तो जिसका पिताजी का नाम है नेपाल दास करके, वहाँ उनके घर में इन लोगों ने अटैक किया करके अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसको लेके हम लोग एक सुमोटो। सर इसमें क्या कोई कम्युनल इशू था? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मुसलमान लोगों ने हिंदू के घर में घर तोड़ रहे हैं ऐसा करके। मैं मीडिया के माध्यम से आप सबको अपील किया जा रहा हूँ, तो ये वैसे कोई इसमें कोई कम्युनल एलिमेंट नहीं था। वहाँ पे जो लोग दोस्त थे इनका एक दो दोस्त थे जो मुसलमान थे, उसके अलावा कोई इसमें हिंदू और मुस्लिम का ये झगड़ा नहीं था। झगड़ा ये था कि दो लोग जो मैंने नाम बताया आपको, मिथुन और रंजन करके, इन लोगों ने कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हुए लोकेलिटी को बर्बाद कर रहे करके दूसरा पार्टी जो विक्टिम पार्टी जिसके ऊपर अटैक हुआ है जो विश्वजीत करके, उन लोगों ने उसको थोड़ा रोकने के लिए कोशिश किया था, इसीलिए झगड़ा हुआ है। इसमें कोई कम्युनल एलिमेंट नहीं है, वैसा कुछ एलिमेंट नहीं है। इसीलिए सबको ये डाउट दूर करने के लिए हम लोग एक सुमोटो केस भी ले रहे हैं और जिसमें भी इसमें इन्वॉल्व है, जो रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि ये कम्युनल इश्यू बन रहा है करके, उनके ऊपर भी हम लोग एक्शन लिया है। सर जो अगवा फैला रहा है उनके खिलाफ कोई? हम लोग सोशल मीडिया में मॉनिटर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से भी। अगर जिसने भी ये ऐसा रूमर स्प्रेड कर रहा है उसके ऊपर वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हम लोग इसके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर करेंगे अगर कोई ऐसे तरीके से कर रहे कर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपने भी बोल दीजिए, उस एरिया में मैं खुद विजिट करके आया हूँ। कल रात को ओसी एसडीपीओ एमएलए भी गए थे, एमएलए खुद विजिट किया वहां पे। ऐसा कोई कम्युनल इश्यू नहीं है, हिंदू मुस्लिम वहां पे बैठ के बात भी किया है। आज मैंने एसडीपीओ को बोला है कि एक पीस मीटिंग भी करेंगे वहां पे, तो एसडीएम ऑफिस में पीस मीटिंग भी करेंगे ताकि ये सब कोई रूमर स्प्रेड ना हो। सर जो मतलब घायल हुए उनका नाम? विश्वजीत करके, उन्हीं से मैंने अभी बात भी करके आया है। बाकी 2-3 लोगों का घायल हुआ करके बोला है, सिंपल इंजरी, उसका भी नाम अभी आपको दे देंगे। ठीक है। वहां पे जो लोग दोस्त थे इनका एक दो दोस्त थे जो मुसलमान थे, उसके अलावा कोई इसमें हिंदू और मुस्लिम का ये झगड़ा नहीं था। झगड़ा ये था कि दो लोग जो मैंने नाम बताया आपको, मिथुन और रंजन करके, इन लोगों ने कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हुए लोकेलिटी को बर्बाद कर रहे करके दूसरा पार्टी जो विक्टिम पार्टी जिसके ऊपर अटैक हुआ है जो विश्वजीत करके, उन लोगों ने उसको थोड़ा रोकने के लिए कोशिश किया था, इसीलिए झगड़ा हुआ है। इसमें कोई कम्युनल एलिमेंट नहीं है, वैसा कुछ एलिमेंट नहीं है। इसीलिए सबको ये डाउट दूर करने के लिए हम लोग एक सुमोटो केस भी ले रहे हैं और जिसमें भी इसमें इन्वॉल्व है, जो रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि ये कम्युनल इश्यू बन रहा है करके, उनके ऊपर भी हम लोग एक्शन लिया है। सर जो अगवा फैला रहा है उनके खिलाफ कोई? हम लोग सोशल मीडिया में मॉनिटर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से भी। अगर जिसने भी ये ऐसा रूमर स्प्रेड कर रहा है उसके ऊपर वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हम लोग इसके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर करेंगे अगर कोई ऐसे तरीके से कर रहे कर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपने भी बोल दीजिए, उस एरिया में मैं खुद विजिट करके आया हूँ। कल रात को ओसी एसडीपीओ एमएलए भी गए थे, एमएलए खुद विजिट किया वहां पे। ऐसा कोई कम्युनल इश्यू नहीं है, हिंदू मुस्लिम वहां पे बैठ के बात भी किया है। आज मैंने एसडीपीओ को बोला है कि एक पीस मीटिंग भी करेंगे वहां पे, तो एसडीएम ऑफिस में पीस मीटिंग भी करेंगे ताकि ये सब कोई रूमर स्प्रेड ना हो। सर जो मतलब घायल हुए उनका नाम? विश्वजीत करके, उन्हीं से मैंने अभी बात भी करके आया है। बाकी 2-3 लोगों का घायल हुआ करके बोला है, सिंपल इंजरी, उसका भी नाम अभी आपको